Good morning, students. Today we are going to start molecular mass and the concept of mole. Now, what is mean by molecular mass? The molecular mass of the substance is nothing but the sum of atomic masses of all the atoms in a single molecule of that substance. You will understood the meaning of molecular mass with the help of following example. Okay. So here one example is given. H2O is the molecule and we have to calculate the molecular mass of H2O. Now first of all, its constituent element, write down its constituent element. Now in water, the constituent elements are hydrogen and oxygen. Okay. Now atomic mass of hydrogen is 1 while that of oxygen is 16. Number of hydrogen atom present in H2O is 2 while that of oxygen is only 1. Okay. Now to calculate the mass of the constituent atom, first of all we have to multiply atomic mass of that atom multiplied by number of atom present in that molecule. Okay. Now see within this column 1 into 2. 1 मतलब atomic mass of hydrogen and 2 मतलब number of atoms present in that molecule. Okay. Now it comes out to be 2. Okay. Now oxygen का atomic mass 16 है और number of atom present in H2O is only 1. So 16 into 1 is 16. ठीक है. Now calculate molecular mass. So look at this formula. Molecular mass is equal to sum of constituent atomic masses. ठीक है. तो molecular mass of substance तो यहाँ पर H2O है is equal to atomic mass of hydrogen into 2 plus atomic mass of oxygen into 1. तो ये हमने ऑलरेडी यहाँ पे कैलकुलेशन किया था. ठीक है. 2 into 16 सॉरी 2 plus 16 तो यहाँ पे वो आ गया 18U. ठीक है. तो 18U इज़ द मोलिकुलर मास ऑफ H2O मोलिक्यूल. ठीक है. तो इस तरीके से मोलिकुलर मास कैलकुलेट करना पड़ेगा. नाउ स्टूडेंट्स, फॉलोइंग आर द एटॉमिक मासेस ऑफ फ्यू एलिमेंट्स इन डाल्टन. ठीक है. तो यहाँ पे एटॉमिक मासेस दिए कुछ एलिमेंट्स के लिए and the molecular formulae of some compounds are also given. ठीक है. Now आपको क्या करना है? Deduce the molecular masses of those compounds. Okay, with the help of atomic masses given here. ठीक है. तो ये आपको करना है homework. Now what is mole? Now mole मतलब क्या होता है? तो when elements and compounds take part in chemical reaction, it is their atoms and molecules that reacts with each other. ठीक है. तो एलिमेंट्स का डायरेक्टली रिएक्शन नहीं होगा. उसके अंदर जो एलिमेंट्स के अंदर जो एटम्स होते हैं एक्चुअली वो जो है वो दैट एटम्स टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन. ओके. एंड देयरफॉर इट इज़ नेसेसरी टू नो द नंबर ऑफ देयर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. However, while carrying out a chemical reaction, it is convenient to measure out quantities that can be handled instead of counting the numbers of atom and molecule. Now the concept of mole is useful for this purpose. Now concept of mole, अभी mole का मतलब क्या है ये हमको देखना है. ठीक है. तो आपको ये बात समझ में आ गई कि केमिकल रिएक्शंस में जो एटम्स होते हैं वो एक्चुअली क्या करते हैं, टेक पार्ट मतलब वो इन्वॉल्व होते हैं केमिकल रिएक्शन के अंदर. ठीक है. नाउ मोल इज़ दैट क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस हुज मास इन ग्राम्स इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड टू द मोलिकुलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस इन डाल्टन्स. ओके.
नाउ यहाँ पे एग्जाम्पल लेंगे, उससे आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगी ये लाइन क्या है। यहाँ पे देखिए, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन इज़ 32 U। ठीक है, ऑक्सीजन का एग्जाम्पल लेंगे तो ऑक्सीजन जो एलिमेंट है उसका मॉलिक्यूलर मास यहाँ पे दिया है 32U। ठीक है, तो देयरफॉर 32 ग्राम ऑक्सीजन इज़ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो हम कंसिडर करेंगे कि 32 ग्राम ये जो उसका मास है, तो उतना जो ऑक्सीजन है वो 1 मोल बोला जाएगा। ठीक है, नाउ द मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर इज़ 18U। तो इसलिए 1 मोल ऑफ वाटर जो है वो 18 ग्राम्स का बनेगा। ठीक है, मतलब 18 ग्राम ऑफ वाटर मेक 1 मोल ऑफ वाटर वी कैन से। ठीक है, तो यहाँ पर वी कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल ऑफ अ सब्सटेंस, इट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल n। ओके, given by the formula mass of substance in grams upon molecular mass of the substance। ठीक है, now here one example is given to you, and from that example you will clear okay this। now यहाँ पर देखिए, number of moles in the given CO2 is equal to mass of the CO2 in grams upon molecular mass of the CO2। मतलब यहाँ पे अगर नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करना है CO2 के लिए, तो उसका फॉर्मूला बन जाएगा n इज इक्वल्स टू मास ऑफ CO2 इन ग्राम्स अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे जो मास है वो 66 है और जो मॉलिक्यूलर मास है वो 44 है। ठीक है, तो इसका डिवीजन आ जाएगा 1.5 मोल। तो यहाँ पे n वी कैन कैलकुलेट n मतलब नंबर ऑफ मोल्स, ओके, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो इट कम्स आउट 1.5 मोल। ठीक है, नाउ नोट दैट 1 mole of a compound is the mass of that substance in grams equal in magnitude to its molecular mass। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि 1 मोल मतलब क्या। SI यूनिट इज़ मोल, MOL से हम डिनोट करेंगे। ठीक है, now Avogadro's number, the number of molecule in 1 mole of any substance is constant। okay, it is always constant। the Italian scientist Avogadro did fundamental work in this context। ठीक है, तो उन्होंने जो वर्क किया है इसके ऊपर, therefore the number is called as Avogadro's number। ठीक है, उन्हीं के नाम से उसको जाना जाता है। ठीक है, एंड इट इज़ डिनोटेड बाय द सिंबल n ऑफ a, कैपिटल N ऑफ a। Now later the scientists demonstrated experimentally that the value of Avogadro's number is 6.022 into 10 raised to 23। तो ये जो वैल्यू है ये आपको याद रखनी है। ठीक है, तो 1 मोल मतलब क्या, तो 1 मोल जो है वो उसको हम इस नंबर से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। ठीक है, नाउ यहाँ पे अ मोल ऑफ एनी सब्सटेंस स्टैंड्स फॉर 6.022 इंटू 10 रेज टू 23 मॉलिक्यूल्स। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी। ठीक है, नाउ एग्जाम्पल अगर लेंगे, अ मोल ऑफ वाटर that is 18 gram of water, we can say it contains 6.022 into 10 raised to 23 molecules of water। ठीक है, ऐसा हम बोल सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया था कि कार्बन डाइऑक्साइड के नंबर ऑफ मोल्स 1.5 है। ठीक है, नाउ 1 मोल ऑफ CO2 कंटेन 6.022 इंटू 10 रेज टू 23 मॉलिक्यूल। ये बात कन्फर्म हो गई। ठीक है, नाउ यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर देयर इन 66 ग्राम ऑफ CO2। तो उसके लिए हमको 1.5 को 6.022 इंटू 10 रेज टू 23 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये हमको बताती है कि दिस मच मॉलिक्यूल्स
आर प्रेजेंट इन 66 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है. नेक्स्ट वन इज़ द वैलेंसी. वैलेंसी मतलब क्या होती है? तो लास्ट टाइम 8th स्टैंडर्ड में भी ये आपने सीखा है कि द कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट टू कंबाइन इट इज़ कॉल्ड एज इट्स वैलेंसी. The valency of an element is indicated by a specific number. ठीक है. Now it is the number of chemical bonds formed by one atom of that element with other atoms. ठीक है. तो यहाँ पे जो हमारा रिपीटेड एग्जाम्पल है कार्बन का वो हम लेंगे. ठीक है. ये कार्बन एटम है. इट कैन फॉर्म केमिकल बॉन्ड विथ 4 डिफरेंट एटम्स. ठीक है. तो हाइड्रोजन एटम के साथ इसने एक केमिकल बॉन्ड बनाया. तो इसकी कैपेसिटी 4 है क्योंकि ये 4 बॉन्ड बना रहा है. ठीक है. तो वी कैन से दैट द वैलेंसी ऑफ कार्बन एटम इज़ 4. ठीक है. ऐसा आप कह सकते हैं. In the 18th and 19th century, the laws of chemical combination were used to find out the valencies of elements. Okay, but now in 20th century, okay, the relationship of the valency of an element with its electronic configuration was recognized. मतलब यहाँ पे आज हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ही कंसिडर करते. एग्जाम्पल सोडियम एटम दिया है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 है. ठीक है. नाउ आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है. इट कैन गिव दैट 1 इलेक्ट्रॉन एंड बिकम्स Na+. मतलब यहाँ पे वो कटायन बन रहा है. तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि जो पॉजिटिवली चार्ज आयंस होते हैं उसको कटायन बोलते हैं और जो नेगेटिवली चार्ज आयंस होते हैं उनको अनायंस बोलते हैं. ठीक है. तो नीचे एक एग्जांपल दिया क्लोरीन का. उसका कॉन्फ़िगरेशन है 287. तो यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन आउटर मोस्ट शेल. रिक्वायर 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट. ठीक है. तो यहाँ पर जो सोडियम एटम है उसने जो 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है तो ये उसको एक्सेप्ट कर लेगा. ठीक है. एंड इट बिकम्स Cl-. तो इस तरीके से आपको यहाँ पे दिख रहा है कि दोनों के जो शेल्स है वो कंप्लीट हो गए. मतलब 28 एंड नीचे 288. ठीक है. तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि आफ्टर द गिव एंड टेक ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज ओवर, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बोथ द रिजल्टिंग आयंस हैज़ अ complete octet. Now due to the attraction between the unit opposite charges on the two ion, one chemical bond is formed between Na plus and Cl minus and the compound NaCl is formed. तो यहाँ पे जो अपोजिटली चार्ज आयंस है उनके बीच में अट्रैक्शन होकर एक बॉन्ड उनके बीच में बनता है और NaCl कंपाउंड यहाँ पे बनेगा. तो इससे एक बात आपको समझ में आती है कि जो सोडियम एटम है हैज़ द कैपेसिटी टू गिव अवे 1 इलेक्ट्रॉन. ठीक है. और जो क्लोरीन एटम है हैज़ द कैपेसिटी टू टेक अप 1 इलेक्ट्रॉन. दिस मीन्स दैट द वैलेंसी ऑफ बोथ द एलिमेंट सोडियम एंड क्लोरीन इज़ 1. ठीक है. ऐसा कह सकते. नाउ फ्रॉम दिस द इलेक्ट्रॉनिक डेफिनेशन ऑफ वैलेंसी इज़ एज फॉलोज. तो ये डेफिनेशन दिया है आपको, ये क्या करना है, लर्न करना है. ठीक है. The number of electrons that an atom of an element gives away or takes up while forming an ionic bond is called as the valency of that element. ठीक है. The electron present in the outermost orbit of an atom are called as a valence electron. तो ये भी बात आपको क्या करनी है, ध्यान में रखनी है. जो आउटर मोस्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोला जाता है. ठीक है. द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट आर गिवन अवे और टेकन अप इज़ ऑलवेज अ होल नंबर. ठीक है. देयरफॉर वैलेंसी इज़ ऑलवेज अ होल नंबर. ये बात आपको याद रखनी है. नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज़ अ वेरिएबल वैलेंसी. वेरिएबल वैलेंसी मतलब
under a different condition, the atom of some element give away or take up different number of electrons. ठीक है, तो हम कंफर्म एक नंबर उसके लिए डिसाइड नहीं कर सकते. ठीक है, तो वो क्या करेगा, एक तो वो देगा नहीं, तो फिर वो एक्सेप्ट करेगा डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. नाउ इन सच केसेस दोज एलिमेंट एग्जिबिट मोर देन वन वैलेंसी. ठीक है, दिस प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड एज अ वेरिएबल वैलेंसी. तो यहाँ पे एक चार्ट दिया है, सम एलिमेंट्स आर गिवन, एटॉमिक नंबर आर ऑल्सो गिवन. सो आपको क्या करना है, यू हैव टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर. नाउ जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स है उससे आप वैलेंसी उसकी डिसाइड कर सकते हैं. नाउ एग्जाम्पल अगर आप आयरन का लेंगे, जो आयरन होता है Fe, इट एग्जिबिट्स द वेरिएबल वैलेंसीज 2 and 3. ठीक है, हम उसके लिए 2 वैलेंसी है या फिर 3 वैलेंसी है ऐसा कन्फर्म नहीं बोल सकते, क्योंकि वो चेंज होती है, बदलती है कंडीशन के हिसाब से. देयरफॉर द आयरन फॉर्म्स 2 कंपाउंड्स विथ क्लोरीन. अभी क्लोरीन के साथ अगर वो जुड़ रहा है तो वो 2 कंपाउंड्स फॉर्म करेगा. FeCl2 कर सकता है, FeCl3 कर सकता है. ठीक है, नाउ इस टेबल में, नीचे टेबल में आपको दिया है कुछ एलिमेंट्स है दैट एग्जिबिट्स द वेरिएबल वैलेंसी. कॉपर का एग्जांपल लेंगे, उसका सिंबल Cu है, उसकी वैलेंसी वेरिएबल है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है. अगर 1 है तो वो Cu प्लस फॉर्म करेगा, दैट इज़ कॉल्ड क्यूप्रस. ठीक है, एंड अगर 2 है तो वो Cu2 प्लस फॉर्म करेगा एंड इट इज़ क्यूप्री. ठीक है, क्यूप्री का आयन उसको बोलेंगे. नाउ मर्क्यूरी आयरन का आपको एग्जाम्पल दिया है, मर्क्यूरी का सिंबल Hg है और आयरन का Fe. ठीक है, तो इस तरीके से मर्क्यूरी जो है दे कैन फॉर्म मर्क्यूरस एज वेल एज मर्क्यूरी, एंड आयरन फॉर्म्स फेरस एज वेल एज फेरिक आयन. ठीक है, नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट इज रेडिकल्स. we'll study it in our next lecture of science. Okay, till then, thank you, goodbye and take care.